Javian, any doubt from last class? No, sir, no doubts. Okay. Wait one minute so that others will join. Good evening, Shweta. Hello, sir. Good evening. Hello. Shweta, you audible? Shweta. Sir, can you hear me? Yeah. You are audible. Yeah, Shweta, you can say. Any doubts, Shweta? Any doubt from last class? कोई doubt है? No, sir. Okay. Try to do, Shweta, Javian, try to do. Good evening, Shamita. Good evening. Any doubt from last class? No, sir. Okay. So मैंने नेचर ऑफ रूट्स बताया था ना, फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होता है? रियल रूट्स के लिए d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन पे आपको सोचना है कि रियल रूट्स होने के लिए कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन। बेसिकली इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन किस पे डिपेंड करेगा? वेरिएबल इज p एंड q। तो बेसिकली आपको बताना है कि p और q का क्या क्या ऑर्डर पेयर हो सकता है पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर सो दैट रूट्स आर रियल, राइट? रूट्स आर रियल। सो बेसिकली आपको नंबर ऑफ जितना भी ऑर्डर पेयर आएगा p एंड q का, उतना ही आपका पॉसिबल रियल रूट्स होगा। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। P and Q is variable, so if P and Q order, if you get the P and Q order pair, then you get the answer. How many quadratic equation? Try to solve it. Shrita, are you doing? Yes, sir.
Javier, are you doing? Yes, sir. Okay. आपने क्या अप्लाई किया है? आपको बेसिक क्या है कि रियल रूट्स होने के लिए d greater than equal to 0. तो आपको यहाँ से क्या मिला कि q square minus 4p is greater than equal to 0. It means कि q square is greater than equal to 4p, right? ये आपका कंडीशन है, right? q square greater than equal to 4p. Now number of आपका क्या गिवन है कि p and q belongs to 1 2 3 4. p और q का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3 4 p and q का. तो नाउ इफ यू टेक p is equal to 1, if you take p equal to 1, q का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? सो दैट्स ए इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करें. p का अगर आप 1 लेंगे, सो नाउ q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट? q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सो आप इसका मतलब है कि आप p q को 1 नहीं ले सकते, अदरवाइज 2 3 4 ले सकते हैं, क्योंकि अगर q का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट? 4 इक्वल टू 4 satisfying. Now 9 is greater than equal to 4, satisfying, and 16 is greater than equal to 4, satisfying. So we can take q is equal to 2, q is equal to 2 3 4. So now order pair is basically p and q के 1, 2, 1, 3, 1, 4, right? ये तीन ऑर्डर पेयर बनेंगे. Now if you take p is equal to 2, if you take p equal to 10, then q क्या क्या ले सकते हैं आप? Now equation is आपने p equal to 2 ले लिया, right? So q square is greater than equal to p का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, so 8. अब q का वैल्यू वो लेना है जो आपका सेटिस्फाई करे, q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8. तो आप क्या q का वैल्यू 2 ले पाएंगे? जेवियन, q का वैल्यू 2 ले पाएंगे? p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2 नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट? सो सेटिस्फाई है. 3 ले पाएंगे? q इज इक्वल टू 3, ऑब्वियसली 3. सो q इक्वल टू 3 एंड 4. सो नाउ ऑर्डर पेयर इज बेसिकली 2, 3 एंड 2, 4. जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, राइट? रियल रूट्स में p और q का वैल्यू आप लेकर क्वाड्रेटिक बनाएंगे जिससे वो रियल रूट्स मिलेंगे. नाउ इफ p इज इक्वल टू 3, श्रीयुता कैन यू से q का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? राइट? q इज इक्वल टू 4. q is equal to 4. Yeah, very good. q is equal to 4. Very good. क्योंकि q square is greater than equal to 8. So 4 into 3, 4 into 3, that is 12. q square greater than equal to 12 only if q is equal to 4. So now order pair is 3, 4. Now if p is equal to 4, मैं basically combination combination लगा रहा हूँ, कितना क्या क्या possibility हो सकता है. p is equal to 4, then q is equal to also 4, क्योंकि q square greater than equal to 16. So q only can take q is equal to 4. So now order pair is 4, 4. p and q order pair is 4, 4. So how many order pairs we got? 1 2 3 4 5 6 7. So number of quadratic equation is equal to 7. This is the final answer. 7 is the final answer. Clear hai? Any doubt? If you have any doubt, you can ask. Anyone, any doubt? No, sir. Clear है ना? Total 7 possible quadratic equation बनेगा जिसका roots real होगा. If you take p equal to 9. Now topic is transformation
of the equation transformation of the equation now question is questions इसको समझते हैं if the roots of the equation x square plus 4x plus 2 is equal to 0 are alpha and beta, then find the equation whose roots are first 1 by alpha 1 by beta, second is alpha square beta square, third is alpha cube beta cube, 4 is 1 by alpha minus 2 1 by beta minus 2. It is alpha minus 1 upon alpha plus 1. अब देखिए पहले नंबर इसको सॉल्व करने आप जाएंगे तो आप अगर नहीं आइडिया होगा इसको सॉल्व करने के आप रूट्स निकालेंगे फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से नहीं सॉल्व करना है। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इफ द गिवन है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपका, उसका रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा है, मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई करेगा ना, इसका मतलब है कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा है, राइट। x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा। तो अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे करता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा x प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। ये आप सोच रहे हो कि x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट सम ऑफ रूट्स प्लस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब इसका आप जब यूज करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें टाइम कंज्यूम होगा और प्रॉब्लम होगा आपको अगर बड़े बड़े इस तरह के जब हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर। सो इसमें क्या बेसिकली लॉजिक क्या है, शॉर्टकट मेथड की देखिए आपका रूट्स पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। इसका मतलब करने का मतलब है कि x इक्वल टू ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका x इक्वल टू 1 बाई अल्फा हो और x इक्वल टू 1 बाई बीटा हो, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, राइट, और बीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ओनली कहाँ पे लगाएंगे, जब सिमेट्रिक होगा, रूट्स आर सिमेट्रिक। देखिए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है। अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता है या बीटा क्यूब होता तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा पाते। तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं जितना भी इक्वेशन दिया हूँ, सब जितने भी रूट्स दिया हूँ वो सिमेट्रिक है। बेसिकली अल्फा क्यू है तो बीटा क्यू है, अगर अल्फा स्क्वायर होता बीटा क्यू होता तो आप यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं लगा पाते, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर आपको है तो आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसका अल्फा बीटा रूट्स है तो बोल सकते हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आल्सो बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ अगर एक चीज है तो मैं इसका वैल्यू तो पुट कर सकता हूँ ना, अल्फा का वैल्यू यहाँ मिल गया, तो अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या, कैसे किया ट्रांसफॉर्मेशन? वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। यहाँ पे चूंकि आपका जो भी रूट्स है वो सिमेट्रिक है, 1 बाई अल्फा है तो 1 बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, लाइक दैट सिमेट्रिक। क्लियर है? तो अगर सिमेट्रिक रूट्स है तो यू कैन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, otherwise we cannot apply the transformation if roots are not in symmetric form. So I have given the 5 questions. Every question in the
symmetric form, right? Roots are in symmetric form. So now see the second question. Now we need to solve all three questions in the homework. सेकंड का आंसर बताइए, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व. फर्स्ट में किसी को डाउट है? एनी डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? No, sir. हाँ, सेकंड का आंसर बताइए. अप्रोच यही है कि x इक्वल टू आप मान लीजिए और उसको अल्फा के टर्म्स में x को लिख लीजिए और आप अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको भी सेटिस्फाई करा दीजिए. एक ट्रांसफॉर्मेशन है. अब इसको कीजिए. एक का आंसर बताइए सेकंड का. Sir, do we take alpha is equal to root x? यस, अल्फा इक्वल टू रूट एक्स. यस. So x plus 4 root x plus 2. सो रूट एक्स नहीं लिखना ना, फिर क्वाड्रेटिक नहीं लिखना ना, आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए. आप रूट एक्स लिखे तो रूट एक्स कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलेंगे? तो So आप एक्स, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है, एक्स होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, राइट? या आपने सही किया, मैं समझ गया, सही किया है. देखिए आपने बोला एक्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है एंड एक्स इक्वल टू बीटा स्क्वायर है. नाउ अल्फा इज इक्वल टू रूट एक्स, राइट? प्लस माइनस बेसिकली, एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स. सो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे. अल्फा, ये हमारा इक्वेशन है कि अल्फा स्क्वायर कोई भी एक पुट कर देंगे. आपका बेसिकली क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो अगर अल्फा का वैल्यू मैं प्लस माइनस रूट एक्स पुट कर दूं, पहले एक ही एक्स ले लेता हूँ. तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे भी प्लस माइनस में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 4 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपका x प्लस 4 रूट एक्स, यहाँ पे आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस. सो नाउ यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है बेसिकली. तो जितने भी x का वेरिएबल है उसके इरेशनल रूट्स को RHS में ले जाके स्क्वायरिंग कर दीजिए. सो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 रूट एक्स. नाउ सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड. So x square plus 4x plus 4 is equal to 16x. Now quadratic equation is x square plus 4x minus 12 equal x. Sorry, minus 12x plus 4 is equal to 0. This is the quadratic equation. Final answer. शमिता क्लियर है? Yes, sir. आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया था ना? यहाँ हाँ, तक sir. Yes, sir. यहाँ तक करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक नहीं ना दिखा है. आपसे पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ रूट सर, राइट? सो आपको इरेशनल जो रूट एक्स जो आपको दिख रहा है उसको RHS में ले जाकर स्क्वायरिंग. अब यहाँ क्यू वाला में क्या करेंगे? क्यू वाला में जब आप पुट करेंगे तो रूट क्यू एक्स के पावर 1/3 आ रहा होगा. तो एक्स के पावर 1/3 वाला को RHS में ले जाके आप क्यूब कर देंगे बोथ साइड, राइट? तो आपका आ जाएगा. सो वहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे बेसिकली क्या है थर्ड क्वेश्चन में कि x इक्वल टू अल्फा क्यू है, तो अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली x के पावर 1/3 है. जब आप पुट करेंगे तो आपका 2 पावर 3 1/3 जनरेट होगा, राइट?
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो पावर फ्रैक्शन होगा उसको क्यूब कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बेसिकली क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपका एक्स पावर 1/3 पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप फ्रैक्शन पावर को हमेशा एक तरफ रखिए और इंटीजर पावर को एक तरफ। सो -2 को उधर लेके चले जाइए आरएचएस में और क्यूब कर दीजिए। एक्स पावर 1/3 पावर 2 प्लस 4 एक्स पावर 1/3 इक्वल टू -2 एंड नाउ क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। जब आप क्यूब करेंगे ना तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आप इसके आगे कर लीजिएगा, आई थिंक हो जाएगा ना। Yes, sir. ओके, सिमिलरली ये सब कर लीजिएगा आप फोर्थ क्वेश्चन में। सिमिलरली फोर्थ में क्या है आपका 1/α-2 है, 1/β-2 है। सो एक्स इक्वल टू आप मान लीजिएगा 1α-2 है। सो नाउ α-2 इज इक्वल टू 1/x। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। तो पुट कर दीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 में अल्फा का वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। Got it? Any doubt? Up to now, any doubt? No, sir. Okay. So now, cubic equation. Cubic equation. I think आपने पॉलिनोमियल 10th क्लास पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, राइट? लेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus d equal to 0. This is the cubic equation where a, b, c, d belongs to real number. A, b, c, d belongs to real number. A not equal to 0. Then अगर रूट्स इसका अल्फा कितना रूट्स होगा, बीटा 3 रूट्स, गामा। देन सम ऑफ रूट्स में इट मींस you can write summation of alpha, it means ki alpha plus beta plus gamma, that is minus b by a, right? Minus b by a. Products of two roots, so alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a। ठीक है, साइन चेंज होता जाता है और यहाँ से बढ़ते जाता है। माइनस से स्टार्ट करते हैं हमेशा, प्लस माइनस इस बार जाएंगे। देखिए, और जो जो पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा गामा का, से एक एक रूट्स का सम निकालेंगे। फिर सेकेंड बार क्या करेंगे, टू का प्रोडक्ट्स का रूट्स का सम एंड थर्ड टाइम्स तीनों का। तो इस तरह से आपने इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, समेशन में, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। अगर सिर्फ समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिखा हुआ है कहीं पे, तो उसको समझना है कि आपको समेशन ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का बात किया जा रहा है। क्यूबिक इक्वेशन में अगर शॉर्ट में समेशन ऑफ अल्फा बीटा सिर्फ लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात किया जा रहा है। इफ ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ समेशन ऑफ अल्फा, देन आपको समझना है कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोला जा रहा है। नाउ समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज मीन प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये होता है, इसको प्रूफ एनीवन कैन प्रूफ कि यही क्यों होता है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है। इसको आपको बेसिकली जो भी लिखा है उसको प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ax क्यूब। लेट्स सपोज कि इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है, राइट? सो आप इक्वेशन लिखना जानते हैं ना कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब 0 के जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा है, x इक्वल टू बीटा है एंड x इक्वल टू गामा है, राइट? सो x माइनस अल्फा इज आल्सो 0, x माइनस बीटा इज आल्सो 0 एंड x माइनस gamma is also 0. So in place of 0 we can write x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. But if you write written x minus alpha, x minus beta, if you compare LHS and RHS, not equal. Why? Because here is generating power x cube is 1, right? RHS is 1, but here is a.
So we need to multiply with a both side. Sorry, right hand side. So that's equal. Now take a is common. A is common from LHS. So get x cube plus b by a x square plus c by a plus d by a. And now RHS is a times x minus x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली मुझे अल्फा बीटा गामा बट यही आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे माइनस अल्फा बीटा गामा. सो नाउ अगर आप कंपेयर करेंगे ए से कैंसिल आउट. सो कंपेयर करेंगे सो कोफिशिएंट क्यूब का एक्स क्यूब का सेम है. सो नाउ इफ यू कंपेयर करेंगे यहाँ से सेम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. सो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल मतलब है कि आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए है. राइट. सो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. प्रूफ हो गया. नाउ you can see there is c by x. c by x. So अगर आप इससे कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट से तो ये है आपका x. सो इसमें इसकी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c by a है एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d by a. कांस्टेंट को ये मैं प्रूफ कर दिया कैसे आता है. एनी डाउट? Any doubt? Anyone? No, Any sir. doubt? No, sir. Okay. Now I am giving question on this topic. Question is, if the sum of two roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 is 0. अब देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ए ऑप्शन है पी क्यू इज इक्वल टू आर. बी ऑप्शन है आपका बस बी ऑप्शन इज क्यू आर इज इक्वल टू पी एंड सी ऑप्शन इज पी आर इज इक्वल टू क्यू एंड डी ऑप्शन इज पी क्यू आर इज इक्वल टू 1. Try to solve it. Very easy question. आपसे बोला गया कि सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0. आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है. The first option. PQ equal to R. Yeah, very good. PQ equal to R. Who's saying answer? I think Sriyata. Sir, alpha equals to 0, no, sir. Yeah, alpha plus beta equal to 0. Then It's- gamma will get us P, sir. Yeah. So gamma is satisfying this equation, right? So P is satisfying it. Yeah, very good. Px square plus qx minus r equal to 0. Let's suppose alpha, beta, gamma is the roots. According to the question, alpha plus beta equal to 0, right?
So use the sum of roots alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. Minus b by a it means minus of minus p upon 1, right? Clear है? So get p and इसका value 0 है, it must plus gamma equal to p. So gamma is equal to p and gamma is satisfying this equation ना. Basically roots है, it means कि gamma q minus p gamma square plus q gamma minus r equal to 0. So gamma का जगह पे p put कर देंगे. So pq minus p into pq p square, right? Gamma का जगह पे मैं put कर दूंगा gamma का जगह पे p, right? Gamma in place of gamma we put p. So plus q into p minus r equal to 0. Pq cancel out. So get pq is equal to r. So option A is correct. Very good. Now next question. If the roots of the equation x cube minus px square plus qxm qx minus r equal to 0 are in AP. आपको बोला गया है कि रूट्स आर इन AP, देन आपको ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 2pq is equal to 9pq minus 27r. E is equal to 2q minus equal to 9pq minus 27r. C ऑप्शन है आपके पास. pq is equal to 9pq minus 27r. D ऑप्शन है आपके पास. 2pq is equal to 9pq plus 27r. सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा. हिंट है कि आपको एपी में बोला गया तो अल्फा 3 नंबर्स आर इन एपी. सो मैंने बताया था कि अल्फा को आप ले लीजिएगा ए माइनस डी एंड बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी. सम ऑफ रूट्स यूज कर लीजिएगा और वहां से आपको एक रूट्स मिल जाएगा. आप एक रूट्स को आप इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा. Yes, sir. ओके, ये होमवर्क में कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If roots alpha, beta, gamma are if alpha, beta, gamma are roots of the equation x cube plus 5x square minus 7x minus 1 equal to 0, then find the equation whose roots are alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, gamma, alpha. यही सेम अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, उसी का यूज करना है इसमें. ट्रांसफॉर्मेशन का आपको बोला गया है कि इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है, देन ऐसा क्यूबिक इक्वेशन आपको बताना है जिसका रूट्स ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा. ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसका आंसर बता दीजिए. Sir, I got alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to 7, sir. Minus 7, sir. या माइनस 7. वेरी गुड. आपको क्यूबिक इक्वेशन बताना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन. I have to substitute that minus 7 in the equation, sir. Yeah. You got the answer. Yeah. But no need to solve like that. Use the transformation. Well, you can see
question given is this. So that we can solve like that. No, don't worry, but we can solve easily like x square plus 5x square minus 7x minus 1 equal to 0 roots alpha beta gamma, right? So now see, if you use the products of roots alpha into beta into gamma, that is minus d by a. So minus 1 upon 1, that is 1. So now alpha beta is equal to 1 by gamma, right? 1 by gamma, we can write na 1 by gamma. So we know na ki x is equal to alpha is the roots for this equation, right? So now 1 by gamma is equal to, or x equal to beta is root, or x equal to gamma is the roots for this equation, this equation. Now so 1 by gamma is basically 1 by x. So alpha beta is equal to basically 1 by x, right? So now आप इसको x को 1 by x से रिप्लेस कर देंगे, राइट? x को 1 by x से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर है? x अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका आया, सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1 by अल्फा आएगा, एंड गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1 by बीटा आएगा, राइट? अब आपको पता है कि अल्फा ए बी सिमेट्रिक है, राइट? सो आपको पता है कि x इक्वल टू अल्फा है, सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू 1 by x, राइट? अल्फा इक्वल टू 1 by x. For required equation, so substitute because alpha इसको satisfy कर रहा है, alpha cube plus 5 alpha square minus 7 alpha minus 1 equal to 0, क्योंकि अल्फा रूट्स है तो अल्फा का जगह पे मैं 1 by x पुट कर सकता हूँ. तो 1 by x cube plus 5 times 1 by x square minus 7 1 by alpha minus 1 equal to 0. अब हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा 1 plus 5x minus 7 x square and minus x cube equal to 0. ये आपका आंसर आ जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x cube plus 7x square minus 5x minus 1 equal to 0. This is the final answer. क्लियर है क्या? हाँ सर. ओके. Very good question. If alpha, beta, gamma are the roots of 7x cube minus x minus 2 equal to 0, आपको बोला गया है then the value of summation of alpha beta plus beta alpha is. इसका शॉर्ट मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको अगर आप खोलेंगे ओपन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बाई अल्फा प्लस गामा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई गामा प्लस बीटा बाई गामा प्लस गामा बाई बीटा, ये इसका मतलब है सिमेट्रिक तरह. देखिए अल्फा बाई बीटा है तो उसी का रेसिप्रोकल बीटा बाई गामा लिखा हुआ था, तो आप गामा बाई अल्फा लिए तो अल्फा बाई गामा एंड प्लस बीटा बाई गामा सो गामा बाई बीटा, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना. तो इतना का मतलब ए आपसे पूछा जा रहा है, इस चीज का वैल्यू पूछा जा रहा है, राइट? तो ए आप देखिए पहले नंबर की जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स बेसिकली 0 होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 होगा, राइट? क्योंकि x का टर्म नहीं है x स्क्वायर का. सो if you apply alpha plus beta plus gamma, that is minus b by a, b का टर्म ही नहीं इक्वल टू 0. So now we can write alpha plus beta equal to minus gamma. अब देखिए कौन सा टर्म को क्लब करने से अल्फा प्लस बीटा जनरेट होगा. देखिए अल्फा बाई बीटा एंड गामा बाई बीटा लेंगे. सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि बीटा प्लस सिमिलरली बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बीटा. सिमिलरली तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर वाला जो भी सेम है उसको एक साथ क्लब कीजिए. सो अल्फा बाय बीटा प्लस गामा बाय बीटा, एक
एक इसको बनाइए एक पेयर, प्लस बीटा बाई अल्फा और गामा बाई अल्फा एक पेयर बनाइए, बीटा बाई अल्फा प्लस गामा बाई अल्फा प्लस इसको एक पेयर बनाइए, अल्फा बाई गामा प्लस बीटा बाई गामा। इससे क्या होगा हमें बेनिफिट्स कि इसका मैं यूज कर पाऊंगा डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे बीटा प्लस गामा बाय अल्फा, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे अलग अलग ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा बाय गामा, राइट। सो अल्फा प्लस गामा को मैं माइनस बीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस बीटा बाय बीटा, प्लस सिमिलरली बीटा बाय गामा को मैं माइनस अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ बाय अल्फा, प्लस इसको माइनस गामा से रिप्लेस कर सकता हूँ। So now it becomes -1 plus -1 plus -1. So that is -3. Final answer is -3. Clear है? देख लीजिए. You have any doubt? You can ask. Any doubt? Anyone? Any doubt? No, sir. Savita, any doubt? No, sir. Javier, any doubt? No, sir. Okay. आपने कॉमन रूट्स पढ़ा है क्या? कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. Anyone know the condition for the common roots? वो common roots, so those are the reference books, right? Provides. या इक्वेशन की बहुत इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा रूट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा आपको. सो दो टाइप हो सकता है ना कि दोनों रूट्स कॉमन हो एंड कि सिर्फ ओनली वन रूट्स कॉमन हो, दो कंडीशन बन सकते हैं, या कि बहुत रूट्स विल बी कॉमन और ओनली वन रूट्स कॉमन. सो दो कंडीशन पे दोनों पे आपको सॉल्व करना होता है कि एग्जैक्टली कि कॉमन रूट्स है क्या. सो नाउ समझते हैं इसको पहले. वन रूट इज कॉमन, for one root common, one root is common. आपको लेट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स लेट सपोज अल्फा एंड बीटा है. एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0. लेट सपोज इसका रूट्स अल्फा है एंड अदर रूट्स इज गामा. देखिए यहाँ दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने एक रूट्स कॉमन लिया हूँ, अल्फा कॉमन है दोनों में. देखिए अल्फा कॉमन है, तो मेरे कहने का मतलब है यही कि वन रूट इज कॉमन, तो वो कॉमन रूट्स एग्जैक्टली होगा क्या, तो अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए सॉल्व करने का अप्रोच बताया. जैसे कि अगर आप देखेंगे तो वन रूट कॉमन है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा एंड दिस इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा. इसमें उसकी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0. नाउ आल्सो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दोनों चीजें 0 होगा. अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अल्फा आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू. सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, आपने 10th क्लास में आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा, 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वी कैन सॉल्व बाय द multiplying with simply converted into linear, two linear equation.
मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें A2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इलिमिनेशन मेथड से, राइट। और अगर वन लाइन में चाहते हैं आंसर तो आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर दीजिए। ये आपको सॉल्व करने आता है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप इसमें इलिमिनेशन मेथड लगाना चाहेंगे तो आप बेसिकली अल्फा स्क्वायर कोएफिशिएंट को इलिमिनेट करना चाहेंगे, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 से, और इसमें A1 से। तो बेसिक कम हो जाएगा कि A2 A1 अल्फा स्क्वायर प्लस A2 B1 अल्फा प्लस C1 A2 is equal to 0, and here is A2 A1 plus A1 B2 अल्फा प्लस A1 C2 इक्वल टू 0। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कैंसिल आउट, नाउ अल्फा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अल्फा कॉमन हो गया, A2 B1 माइनस A1 B2 इज प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ सब सॉल्व कर लेंगे तो आपका अल्फा मिल जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2 अपॉन A2 B1 माइनस A1 B2। अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अल्फा स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा B2 से एंड इसमें B1 से। नाउ ये तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एनीवन नो द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? 10th क्लास में पढ़ा था आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एनीवन? Anyone know the? Okay, so now I am explaining. Basically, in the cross multiplication method, आपको पहले जो भी वेरिएबल है उसका आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर आपका है। सो अल्फा स्क्वायर को आपने लिख लिया। बेसिकली आप ऐसे लिखिए, A1 अल्फा स्क्वायर है ना, A1 अल्फा स्क्वायर B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0, एंड A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0 है। नाउ आप देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिया। पहले आप बेसिकली आप अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं ऊपर में, तो इसको आप भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब जो भी बचा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 C2 और बीच में माइनस साइन लगा दीजिए, C1 B2, राइट, अल्फा स्क्वायर बाई। नाउ अब अगर आप अल्फा को कर रहे हैं तो आप इसको भूल जाइए, और जो भी बचा आपके पास बचा, अगर आप इसको नाउ आप अब अल्फा लिख रहे हैं, सो नाउ इसको आप भूल जाइए। इसके बाद आपके बचा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो C1 C2 और ए कीजिए माइनस, तो अल्फा अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1। ये गलती मत कीजिएगा कि A1 C2 माइनस, आपको गलत हो जाएगा। राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट में आएंगे। नाउ अगर आप फिर कांस्टेंट टर्म 1 लिखिए अपॉन, इसको आप भूल जाइए। नाउ ए आपका कोएफिशिएंट बचा, सो A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका हो जाएगा कंडीशन। तो यहाँ से अगर आप अल्फा निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन को अगर लेंगे तो आप अल्फा का वैल्यू आएगा आपका C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, और अल्फा स्क्वायर आएगा आपका B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट कर देंगे अल्फा स्क्वायर में, यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग, सो आपको कंडीशन मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है बेसिकली, बहुत रूट्स आर कॉमन से सवाल आता है बेसिकली ज्यादातर। ये चीज समझ में आया, 1 रूट्स आर कॉमन। एनीवन, एनी डाउट? No, sir. Okay, so now both roots are common. Condition for both roots are common. दोनों roots common हो quadratic
दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एंड उनका दोनों रूट्स सेम हो। इट मींस कि लाइक सेकंड इज both roots are common. Now let's suppose a1x square plus b1x plus c1 equal to 0. इसका रूट्स अल्फा बीटा है, राइट? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1 a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका भी रूट्स चूंकि बोला गया कि बोथ रूट्स कॉमन है, तो अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स है तो इसका भी अल्फा बीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट्स अल्फा बीटा। अब इसके लिए आप अगर फर्स्ट के लिए भी लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सो लिखेंगे माइनस बी वन बाई ए वन, राइट? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? सी वन बाई ए वन। अगर इसके लिए आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो आप लिखेंगे माइनस बी टू बाई ए टू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट सी टू बाई ए टू। तो अगर आप देखेंगे तो एल एच एस सेम है, इस ए वन मान लीजिए 2 3 4। अगर आप वन और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे फ्रॉम वन एंड थर्ड, तो आपको क्या दिख रहा है कि एल एच एस सेम है, अल्फा प्लस बीटा सेम है। सो आप ये बोल सकते हैं ना कि माइनस बी वन बाई ए वन इक्वल टू माइनस बी टू बाई ए टू, राइट? तो यहाँ से आपको मिलेगा कैंसिल आउट ए टू बाई ए वन इक्वल टू बी टू बाई बी वन, ये चीज मिल गया। नाउ अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थर्ड फोर्थ को, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 को देखेंगे तो आपको अल्फा बीटा कॉमन एलएचएस में दिख रहा है, तो आरएचएस भी मस्ट बी सेम। सो c1 by a1 इक्वल टू c2 by a2। सो नाउ आपको दिख रहा होगा a2 by a1 इक्वल टू c2 by c1। क्लियर है? इसको 5 इसको 6। अब 5 और 6 को अगर देखेंगे आप तो एलएचएस सेम है a2 a1, इसका मतलब है कि a2 by a1 इक्वल टू b2 by b1 इक्वल टू c2 by c1 होगा। अगर आप फ्रॉम 5 एंड 6 देंगे, फ्रॉम 5 एंड 6, तो एक कंडीशन होता है बोथ रूट्स के लिए कॉमन। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो सेम होता है इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। मतलब है कि अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। बोथ रूट्स कॉमन होगा अगर एक कंडीशन होगा तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, देन वी कैन से कि बोथ रूट्स आर कॉमन। Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No, sir. Okay. So now I am giving question to you. Note point. Note point. If roots are not real, or roots imaginary, or roots एक ही बात को बोल दीजिए, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स अगर इमेजिनरी होगा देन इस कंडीशन में देन बोथ रूट्स कॉमन होगा, देन बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर इफ इस मतलब है इसका इनडायरेक्टली कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा, देन वी कैन से कि बोथ रूट्स कॉमन होगा। अगर d लेस देन 0 होगा तो देन बोथ रूट्स कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि आपको d पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट दोनों सेम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये होता है। जैसे आपका क्वेश्चन होगा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 is equal to 0,
having one root common to the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find the ratio, find the a ratio b ratio c equal to what. तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो हैविंग वन रूट बोला गया है, बट हमें समझना है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका d लेस देन 0 है। आप निकालेंगे d 16 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज -4, राइट। सो इज लेस देन 0 है। सो मैंने क्या बताया कि अगर d लेस देन 0 है, इफ d इज लेस देन 0, देन इन दिस कंडीशन बोथ रूट्स आर कॉमन। सो बोथ रूट्स जब कॉमन होता है तो क्या होता है, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। सो नाउ वी कैन अप्लाई a by 1 equal to b by 4 equal to c by 5, right? So now let's report k. So a equal to k, b equal to 4k, c is equal to 5k. So ratio will be a ratio b ratio is a ratio b ratio c is equal to 1 ratio 4 ratio 5. So this is the final answer. Anyone have any doubt? Sir, could you explain it again? या सी मैंने नोट पॉइंट में क्या बताया कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन बोथ रूट्स आर कॉमन। रूट्स इमेजिनरी कब होगा, जब d लेस देन 0, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे आपको बोला गया क्वेश्चन में इफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैविंग वन रूट कॉमन, क्वेश्चन में हैविंग वन रूट कॉमन लैंग्वेज में यूज होगा टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो एक क्वाड्रेटिक है, दोनों रूट्स का दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको कॉमन बोला गया है, और फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी आपने पूछा गया है। बट यहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है लैंग्वेज से। आपको समझना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका d लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 तो वन रूट कॉमन नहीं होगा, बोथ रूट्स कॉमन होगा, बोथ रूट कॉमन होगा। आप वन रूट वाला कंडीशन लगा देंगे तो गलत आएगा ही नहीं आंसर करने। तो आपको बोथ रूट्स कॉमन वाला कंडीशन लगा देना है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो रेशियो सेम होगा, मतलब a/1 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 इक्वल टू लेट्स सपोज k। तो एक a/1 को k से कंपेयर कर दीजिए, b/4 को k से कंपेयर कर दीजिए, k इज सम कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, सो c/5 इज इक्वल टू k। तो abc आपको आ गया। अब जब रेशियो लेंगे तो 1:4:5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Yes, sir. Any doubt? No doubt, sir. Okay. One homework question. One roots common concept. One homework question. If the equation x square plus 2x plus 3k equal to 0 and 2x square plus 3x plus 5k equal to 0 has one root common, then find k। अब आज पे इसमें बोला गया कि एक रूट कॉमन है और वेरिएबल है, तो आप तो डी के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं कि डी लेस देन है क्या। तो इसका मतलब है कि वही क्वेश्चन है कि आपको वन रूट कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। ये कॉन्सेप्ट ये इसका आपने यूज कर लीजिएगा, इस चीज को यूज कर लीजिएगा आपको, और के का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू ए और बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इसका यूज करके आपको के का वैल्यू निकाल लेना है, और यू कैन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। I will discuss in the next class. Okay. Anyone have any doubt? No, sir. Okay. So, I will try to
names बनाऊंगा arrange वगैरह and allocation of votes I will keep. So, now I am ending the meeting. If anyone have any doubt, you can ask. Okay, so thank you. Bye. Good night. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.